اختر رضا خان تاجو شریعہ، اختر رضا خان تاجو شریعہ، تیرا پیغام عمل مسلک اعلیٰ حضرت، تیرا پیغام عمل مسلک اعلیٰ حضرت، دولت عشق رسالت ہے اثاثہ تیرا، واہ کیا رنگ رنگ، واہ کیا رنگ رنگ، واہ کیا رنگ ہے ازہری دولہا۔ انس قاسمی صاحب دیوبندی صاحب، میں جسیم اختر رضوی بات کر رہا ہوں۔ ہلو، آواز جا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں جسیم اختر رضوی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کال کیا تھا نا، اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں اکابر کا باغی کون اور تسکین الاذکار ایک کتاب ہے جو ماسٹر امین اکاڑوی صاحب لکھے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کوے کو بھی پتا ہے کہ قبر زمین پر ہوتی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر علیین میں جا کر بدکا تھا یا سجین میں جا کر یا یہیں، اس لیے جو اس زمینی قبر کو قبر نہیں مانتے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں قبر کے معاملے میں، یہ قرآن پاک کے منکر ہیں، ہے نا؟ یہ احادیث متواترہ کے منکر ہیں، اجماع فقہا کے منکر ہیں۔ تسکینۃ الاذکیاء صفحہ نمبر 98، اکابر کا باغی کون صفحہ نمبر 151 میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ مناظر دیوبند زمینی گڑھے پر ہی ہوتا ہے۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ یہی قبر کے متعلق بتا رہا ہوں میں، اس کو سن لیجیے، یہ عبارت سن لیجیے۔ ارے یار، قبر کا تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے، آپ موضوع پر کس بات کر رہے ہیں بتائیے مجھے۔ قبر کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں، عبارت پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ یہاں کا نام ہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد کے عقیدے کے اوپر بات کریں۔ مدد کے عقیدے پر ہی بات کر لوں گا انشاءاللہ، میں بعد العشاء بات کروں گا۔ اس کو حل کر لیجئے پہلے کہ کوئی شخص قبر کا دوسرا مفہوم مراد لے، یعنی قبر سے مراد عالم برزخ لے، تو وہ شخص اس دیوبندی مناظر کے نزدیک قرآن کا منکر ہے، حدیث متواترہ کے منکر ہے، اجماع کا منکر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ یہ 4 قرار دیے یہ۔ ٹھیک، کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں بتائیے پہلے مجھے۔ یہ قبر کے متعلق، قبر کو جو زمینی گڑھے کہے یا قبر کو دوسرا معنی مراد لے یا عالم برزخ لے، تو وہ شخص دیوبندی مناظر کے نزدیک قرآن کا منکر ہے، حدیث متواترہ کا منکر ہے، اجماع کا منکر ہے، جانوروں سے بدتر ہے، کہا کر لکھے ہیں۔ ارے اگر کیا بولتے ہیں کوئی آدمی گناہ گار ہے تو جہنم، وہ قبر جو ہے اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور اگر صحیح ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی قبر میں۔ تو وہ تو حدیثوں میں، وہ حدیثوں میں۔ آپ کی وائس یہ ہے، ایکو آ رہے ہیں جناب۔ آپ موضوع تو بتائیں نہیں، خام خائی قبر پہ پہنچ گئے پتہ نہیں کہاں سے۔ نہیں، قبر کی ایک عبارت میرے نظر سے گزری جو کہتے ہیں یہ دیوبندی مناظر صاحب۔ آپ تو ڈائریکٹ شروع ہو گئے نا۔ آپ کلام کتابوں میں کچھ غلط بھی ہو سکتا، الٹ پھیر بھی کیا جا سکتا۔ جب الٹ پھیر نہیں، میرے ہاتھ ہی میں ہے۔ سنیے پہلے میری بات۔ اب سے پہلے جو 3 کتابیں آئیں اس میں رد و بدل کر دیا گیا، تو آج کی کتابوں میں کیا لڑانے؟ کون سی کتاب میں رد و بدل کر دیا گیا جی انس صاحب؟ ہلو، ہاں، کون سی کتابوں میں رد و بدل کر دیے گئے کہتے ہیں؟ نہیں، ویسے رد و بدل کرنے والے کو بہت ساری گرفت کرتے ہیں، ان کے ہی جماعت والے، سمجھے؟ آپ بہت مواخذہ کرتے ہیں، سمجھے؟ لیکن
तस्कीन अकाबिर का बाकी कौन सफ़ा नंबर 151 में जो लिखे हैं, हम बात जो कर रहे थे मदद के ऊपर कर रहे थे, औलिया किराम से, औलिया किराम के मदद के बारे में। अभी इंशाल्लाह बादल ऐशा मैं आपको कॉल करूंगा, ये मसला को हल कर लेता हूँ पहले। नहीं हमने जो बात की छेड़ी थी, मसला क्या था हमारा। नहीं आप मौजू नहीं दिए थे हमको जनाब। ये तो आप कबर का मसला कहाँ से उठा कर आ रहे हैं, पता नहीं बीच में से। आपको तो इधर उधर भागने की आदत है ना। एक नहीं आप मुझसे बात किए हैं मदद के बारे में। उस मसले को हल करिए ना। आप औलिया किराम और अंबिया किराम से मदद मांगने के ऊपर जो इंशाल्लाह मैं ऐशा के बाद आपको इसमें कॉल करता हूँ। आज ही अभी कॉल करेंगे ऐशा के बाद। आपको ऐशा के ऊपर इस चीज के ऊपर बात करनी थी, तो फिर आपने अभी फोन क्यों किया? नहीं, आपको मैं इसलिए फोन किया कि ये आपकी अकाबिर का जो किताब मेरे पास मौजूद है, कब्र से मुराद को कह रहे हैं कि बरज़खी अगर मुराद लेंगे। मैं भाग नहीं रहा हूँ, इस इबारत को सुलझा लीजिए, सुन लीजिए पहले। आप पहले औलिया किराम और अंबिया किराम से मदद को जायज बता रहे हैं। जी जायज बताते हैं, आप तो शिर्क समझते हैं ना। नहीं कहना, उस मसले के ऊपर ही बात की है ना। बाद में हम खबर के ऊपर आएंगे ना। खबर को क्या नहीं लेगा, चला आप इस मसले पर बात करिए ना, जिसका हमने चढ़ा औलिया किराम और अंबिया किराम से मदद के ऊपर। इंशाल्लाह उसमें बात कर लेंगे। मैं ऐशा के बाद आपको कॉल करता हूँ। करेंगे क्यों बात ऐसी करते हैं ना, दूसरा मसला लाए क्यों है बीच में? आप बीच में आप मौजू ही नहीं दिए थे हमको, आप मौजू दिए थे हमको मदद के बारे में। बात ही नहीं हुई। अभी कॉल किया हूँ मैं भागने की आदत नहीं जनाब। आपको मैं कॉल किया इस वास्ते के ये मसला को हल कर लेते हैं, उसके बाद ऐशा बाद आपको मैं वादा करता हूँ। जी सूर्य फातिहा पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं, यासीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। क्या इसमें पढ़ते हैं? कुरान पाक के अंदर क्या फरमाया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसमें हम तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। आप दूसरे गैर से मदद ले वो मुश्रिक हो जाते हैं ना। हाँ मुश्रिक हो जाएगा बिल्कुल। और आपके हिसाब से हो जाएगा। हाँ सिर्फ नबी का वसीला, वली का वसीला लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट नबी या वली से मदद मांगना शिर्क और बिदअत है। ये तो नबी ने हमें सिखाया नहीं। नबी ने खुद अल्लाह से मदद मांगी। जब नबी को मदद की जरूरत मांगी और पड़ी तो अल्लाह से मांगी या नहीं मांगी, या किसी नबी से मांगी अल्लाह से नबी ने मदद? ये बताइए मुझे। जब नबी खुदा से मदद मांगा तो हम कौन होते हैं अंबिया किराम और औलिया किराम से मदद मांगने वाले? तो आप कह रहे जी बताइए। नहीं, अगर अल्लाह को छोड़कर नबी से मदद मांगेंगे और औलिया किराम से मदद मांगेंगे तो नबी के रास्ते तो औलिया किराम के रास्ते से हट रहे हैं, नहीं हट रहे? लाहौर वला को आपके समझ में है, मदद लेना ही गैरुल्लाह से मदद लेने को बिल्कुल आपने शिर्क करार दे दिया है ना। हाँ शिर्क करार दे रहे हैं हम, उनका वसीला लगाने को जायज करार दे रहे हैं। वसीला तो कोई इनकार नहीं करता है जनाब। आप मदद इस्तिमदाद जो हासिल करते हैं तो मदद जो मांगता वो मुश्रिक ही मांगता अल्लाह से, और अल्लाह के अलावा नबी से या वली से। अल्लाह के वलियों से और अल्लाह के नबियों से जो मदद मांगते हैं वो मुश्रिकीन है ना। मदद मांगते हैं। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें क्या बताया, क्या सबक दिया कि मुझसे मदद मांगे, अल्लाह से मदद मांगा? अब अल्लाह से तो मदद का किसी को इनकार नहीं है, अल्लाह से मदद का किसी का इनकार नहीं है, लेकिन औलिया अंबिया से जो मदद मांगते हैं वो मुश्रिक होते हैं ना। हाँ मुश्रिक होंगे, एकदम बिल्कुल मुश्रिक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल मुश्रिक हो जाएंगे। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी क्या? अल्लाह तो मदद करने वाला है और अल्लाह गनी भी है, हर चीज का हर काम का बनाने वाला अल्लाह है। वो तो खुद कहता है कि जो बीमारी को दूर करने वाला वो आए मुझसे मांगे, मैं बीमारी दूर करने वाला हूँ। जो परेशानी को दूर करने वाला वो आए मेरे पास, मेरे दरबार में, मैं मदद करने वाला हूँ, उसकी बीमारी को दूर करने वाला हूँ। जो औलाद मांगने वाला मेरे दरबार में आए मुझसे मांगे, मैं औलाद देने वाला हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। आपने फतवा लगा दिया है जो गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के वलियों से अंबिया से जो मदद मांगे वो मुश्रिक है, काफिर है ना। हाँ बिल्कुल मुश्रिक है। तो एक किताब इमदादुल मुश्ताक मेरे हाथ में है, ये सफ़ा नंबर 115 है।
थानवी साहब लिखते हैं, अशरफ अली थानवी साहब, जब आसारे मज़ार शरीफ का बयान आया, आप यानी हाजी इमदादुल्लाह ने फरमाया कि मेरे हजरत का एक जोलहा मुरीद था। बाद इंतकाल हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज़ार से 2 आने या आधा आना रोजाना मिलेगा। एक मर्तबा मैंने जियारत मज़ार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान किया और कहा कि मुझे हर रोज वजीफा मुकर्रर यही कब्र से मिला करता है। तो ये थानवी साहब आपके फतवे से और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की आपके फतवे से काफिर व मुशरिक ठहरे जनाब। हेलो, क्यों आपकी बोलती बंद हो गई? ये अशरफ अली थानवी तो बादल विसाल दस्तगीरी और मदद के कायल है ना। ये अशरफ अली थानवी आपके फतवे से काफिर हुए कि नहीं? नबी का वसीला तो कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन मदद करने वाला है, कब्र के से मदद लेने वाला, वसीला लेने वाला, तो ये अशरफ अली थानवी काफिर और मुशरिक ठहर गया जनाब। मदद मांगने का इनकार करते हैं, वसीले का इनकार नहीं करते। ये दस्तगीरी फरमाइए, रोटी मोहताजों का मोहताजी दूर कर, रोटियों का और वजीफा मिल रहा था, कब्र से मदद मिल रही है। अशरफ अली थानवी आपके फतवे से काफिर हो गए ना? नहीं, इसका जवाब दीजिए। ये दस्तगीरी जो हो रहा है, हाजत रवाई हो रही है जनाब, हाजत रवाई मान रहे हैं अशरफ अली थानवी और मुहाजिर मक्की, तो दोनों आपके फतवे से काफिर और मुशरिक करार पाए। हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? तो ये तो हाजत रवा ही मान रहे हैं, रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीर फरमाइए। औलाद देने वाला कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? औलाद देने वाला अल्लाह है, कहेंगे नहीं? औलाद देने वाला अल्लाह है ना? हाँ, औलाद देने वाला अल्लाह है। और जो इसे दूसरे के पास अगर जाए, अगर कहे कि उसे मदद मिलनी चाहिए औलाद के लिए, तो अशरफ अली थानवी की माँ तो एक मजलूब और उसकी नानी के दोनों मिलके मजलूब के पास गई थी ना। 2 बशारत दिए, 2 लड़के होंगे कह के, एक अली अकबर खान और एक अशरफ अली खान, नाम भी बता दिया था। बताइए, आपके फतवे से तो आपके थानवी जी भी नहीं बच रहे हैं जनाब। हेलो, मदद मांगने गई थी वो, मदद मांगने गई थी। जिसको मदद मांगना शिर्क कहे हो, वह थानवी जी के घर से निकल रहे हैं, तो थानवी आपके फतवे से तो काफिर और मुशरिक करार पा रहे हैं ना। जो अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगे वो मुशरिक ही होएगा। तुमने कहा ना कि जो अल्लाह के अलावा जिससे मदद मांगे, अंबिया औलिया से मदद मांगे, वो मुशरिक है। अभी मुंह करके दोगलापनी बात ना करें जनाब। दोगलापनी बात, डबल दो रुखी वाली बात ना करें। सही तौर पर आपके फतवे से अशरफ अली थानवी बचता ही नहीं, देवबंद वाले बचेंगे ही नहीं, समझे? देखिएगा। हेलो, फोन काट के मत भागिए ना। इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 111 में है, देखिएगा मेरे हाथ में ये अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक में क्या लिखते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब अपने पीरो मुर्शिद, किताब का नाम बताइए। इमदादुल मुश्ताक जनाब, सफा नंबर 111। इमदादुल मुश्ताक किसकी लिखी हुई है? या अशरफ अली थानवी साहब आपके हकीमुल उम्मत हैं। और एक मसाइके चिश्त सफा नंबर 234 में, सफा नंबर बताइए आप। 111 इबारत भी सुन लीजिए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने अपने पीरो मुर्शिद मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब के आखिरी वक्त का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, हजरत ने तशफ़ी दी और फरमाया, फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता था। अशरफ अली थानवी साहब, मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए जी। इंतकाल का मतलब? इंतकाल माने इस दुनिया से कूच कर जाना, इस दारे फानी से कूच कर जाना। हम उर्दू में बात कर रहे हैं ना, उर्दू ही में बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? इंतकाल माने या अपने जो आदमी
कि जिस्म से रूह निकल जाती है वो इंतकाल हो गया कहते हैं ना, मुझे लग रहा है। और आपको अरबी पढ़ना बोल दिया तो शायद बुखारी आ जाएगा, बुखारी अगर अरबी में पढ़ने के लिए बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद उस्ताद हूँ, समझे, मैं पढ़ाता खुद हूँ जनाब। देखिए आपके देखिएगा इंतकाल हुआ ना, मुंतकिल होना, ये खुद लिख रहे हैं, ये खुद लिख रहे, एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है, यानी उसको तब्दीली करते हैं एक से दूसरे मकान में। फकीर मरता नहीं है, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो जिंदगी जाहिरी में मेरी जात से होता था। अशरफ अली थानवी साहब इस रवायत को हाजी साहब से बयान करने के बाद उसका तजर्बा यूं नकल करते हैं, फरमाया हजरत यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब ने, मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फायदा उठाया जो हालत हयात में उठाता था। बताइए, अशरफ अली थानवी तो इमदाद के कायल हैं और आप कह रहे मुश्रिक का फतवा लगाए, तो आपके फतवे से थानवी साहब तो काफिर और मुश्रिक हुए ना। अल्फाज क्या पढ़े, अल्फाज उठाया, मैंने मदद हासिल नहीं की, उन्होंने ये वर्ड नहीं यूज किया कि मैंने उनसे मदद हासिल, फायदा उठाया, कब्र वालों से फायदा उठाएगा कैसे? रहमत का फायदा उठा रहे नहीं उठा रहे। आप कहते हैं कि नबी हाजिर और नाजिर है, हाजिर अभी मौजूद मत बदलिए, हाजिर और नाजिर में भी खटिया खड़ी और भीतर गोल कर दूंगा। जिंदा है, हाँ इंशाल्लाह, मैं हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर और नाजिर मानते हैं, उसकी दलील देंगे जनाब। नहीं पहले आप तो मदद के ऊपर बात हो रही, वहाँ पर उन्होंने तो मदद के वर्ड यूज ही नहीं किया, मदद के यूज नहीं किया, पहले हवाला दिया ना, क्या वही फायदा हासिल किया जी, फायदा हासिल करने की बात आई ना जी, तो वसीला लेने उससे तो इसमें मदद मांगने का आप ताल्लुक आ रहे हैं, मुझे ये बताइए। जी जी, इसमें मदद मिल रही है, उनको फायदा मिल रहा है, मदद मिल रहा है और कायल है, और यही इमदादुल मुश्ताक में हाजत दस्तगीरी हाजत रवाई भी किए हैं, दस्तगीरी फरमाइए कह करके लिखे हुए हैं, जिसका आपने मुश्रिक का फतवा दिया, आपके फतवे से अशरफ अली थानवी काफिर और मुश्रिक करार पाए। ठीक, हेलो, देखिएगा मैं आपको हवाला मैं दे सकता हूँ बहुत ज्यादा जनाब, जैसे अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 253, कितना है 253, हिकायत नंबर 365 है, कितना 365 है। थानवी साहब लिखते हैं, मौलवी मोइनुद्दीन साहब हजरत मोहम्मद याकूब साहब के सबसे बड़े साहबजादे थे। वो हजरत मौलाना की एक करामत जो बाद वफात वाकई हुई बयान फरमाते थे, एक मर्तबा हमारे नानोता में जाड़ा बुखार की बहुत कसरत हुई, सो जो शख्स मौलाना मोहम्मद याकूब की कब्र से मिट्टी ले जाकर बांध लेता उसे ही आराम हो जाता। बस इस कसरत से मिट्टी ले गए कि जब डलवाओ तभी खत्म, कई मर्तबा डलवा चुका। परेशान होकर एक दफा मौलाना की कब्र पर जाकर कहा, ये साहबजादे बहुत तेज मिजाज थे, आपकी तो करामत हो गई और हमारी मुसीबत हो गई। याद रखो कि अगर अब ये कोई अच्छा हुआ तो हम मिट्टी ना डालेंगे, ऐसे ही पड़े रहियो, लोग जूता पहने तुम्हारे ऊपर ऐसे ही चलेंगे। बस उस दिन से फिर किसी को आराम नहीं हुआ, जैसे शोहरत आराम की हुई थी वैसे ही शोहरत हो गई, अब आराम नहीं होता है। फिर लोगों ने मिट्टी ले जाना बंद कर दिया। देखा जनाब, इस वाकया से आपने देवबंदियों के नजदीक बुजुर्गों की कब्रों से कैसे कैसे फैज व बरकत और इस्तिमदाद हासिल होते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि देवबंदियों के मौलवी बाद अज वफात भी लोगों को अपनी कब्रों से नफा पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, उससे उनका इख्तियार भी देखिए, क्योंकि शिकायत होने पर नफा रिसानी बंद भी कर देते हैं वो लोग, इससे पता चल रहा है। और आप कह रहे हैं शिर्क का फतवा, तो अशरफ अली थानवी तो आपके फतवे से काफिर ठहर रहा है ना, क्या जवाब है जनाब? अरे मदद के ऊपर बात हो रही है ना, मरने के बाद वो कब्र वाले फायदा दे रहे हैं लोगों को, मखलूकों की शफा, बीमारी की शफा दे रहा है। आपने कहा बीमारी को शफा करने वाला कौन, औलाद देने वाला कौन, तो आपके घर में औलाद भी मिल रहे हैं, बीमारी के शफा भी मिल रहे हैं, तो सब देवबंदी ये जितने अशरफ अली थानवी आपके हकीमुल उम्मत है सब मुश्रिक है। अगर उन्होंने मदद को जायज लिखा है,
मदद को जी अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद मांगी जा सकती है। तो मुश्रिक है ना? क्यों बोलती बंद खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो रहे हैं जनाब अनस देवबंदी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आपने तस्लीम कर लिया मुश्रिक है, तो आप ऐसे देवबंदी धर्म से आप क्यों तौबा नहीं कर लेते हैं जनाब? मैं मशवरा दूंगा आपको, ऐसी तजाद बयानी जिस तरफ रुख करो देवबंदी वो उधर ही गड्ढे में जाता है। देवबंदी धर्म नजदी धर्म जिसको मैं बोलता हूँ, अशरफ अली थानवी को भी आप मुश्रिक कह रहे हो, आलानिया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इससे मुलविस है उसको बताया तो फटाक के मुश्रिक करार दे रहे हो, तो ऐसे धर्म में क्यों हो यार? इस्लाम में आओ, मुसलमान बनो। अरे मैंने मुश्रिक डायरेक्ट नहीं ठहराया, अगर उन्होंने देखा अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है तो मुश्रिक ठहरा रहा हूँ। तो वो तो मुश्रिक हो गए ना, तो आपको गैरुल्लाह से मदद बता दिया ना जी। गलत बयानी मत करिए। गलत बयानी कर रहा हूँ उन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ लिखा है कि ये सब आप ही के घर का इबारत मैं सुना रहा हूँ ना जी। आप इबारत कुछ बता रहे हैं, उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कभी मुश्रिक कहते हो, कभी क्या कहते हो यार, समझ में भी नहीं आती है। देखिएगा तारीख मसाइक किस्त देखिए कि वो उल्टी सीधी इबारत उतार कर ले नहीं वो गलत सनाब आपको मैं आपकी वो मीनो अन इबारत पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और उन्होंने फतवा दे दिया और उसके बाद जब अब हुसामुल हरमैन में बात करेंगे जनाब। अनस कासमी देवबंदी साहब, अनस मुफ्ती देवबंद अनस कासमी साहब, मुफ्ती अनस कासमी देवबंदी साहब गौर से सुनिए, आप खिचड़ा मत पकाइए मौजू का। आपने इस्तिमदाद को हासिल करना शिर्क करार दिया है ना। अगर मुफ्ती सामने आ गया, देखिए सुनिए गौर से सुनिए, तारीख मशाइख चिश्त सफ़ा नंबर 235 है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अपने पीरो मुर्शिद मियाँ जी नूर मोहम्मद की कब्र के सरहाने चंद अशार का एक कुतबा नस्ब करवाया। मशहूर तबलीगी देवबंदी शेखुल हदीस मोहम्मद जकरिया कांधलवी इन अशार को बयान करते हुए एक जगह लिखते हैं, जिसको हुए शौक दीदारे खुदा उनके मरकद की जियारत को वो जा, यानी पीरो मुर्शिद मौलाए मेरे हजरत नूर मोहम्मद नेक है। गोया इन हजरात के नजदीक अगर किसी को खुदा की जियारत का शौक हो तो चाहिए कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर पीरो मुर्शिद मियाँ जी नूर मोहम्मद की कब्र की जियारत कर ले। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए कितना इतना दर्जा तुम लोग दे करके आए हैं और मदद आपने खुद ले रहे हैं अपने अकाबिर को, खुद तुम फतवा लगाते हो शिर्क के, तो बताओ इससे तो बहुत तुम्हारे अकाबिरीन मुश्रिक करार पा रहे हैं। और फातिहा पढ़ने की बात कहे थे ना, हेलो फातिहा पढ़ने की क्या बात है? फातिहा को खुद इमाम अहमद रज़ा साहब ने ईसाले सवाब बताया है। फातिहा वही ईसाले सवाब है, ईसाले सवाब से तो इनकार नहीं है आपको। फातिहा का मतलब ईसाले सवाब पहुंचाना है न, ईसाले सवाब पहुंचाना, इससे इनकार तो नहीं है ना? नहीं, इनकार बिल्कुल नहीं है। और इमदाद से आप अभी इनका तौबा किए या नहीं? इससे तौबा कर लीजिए। औलिया से अंबिया से इमदाद मिलती है जो आपके अकाबिरीन भी कायल है जी। जिसको शिर्क का फतवा लगाए ना, आपके फतवे से बड़े बड़े अकाबिरीन आपके जहन्नम वासिल हो गए। क्या ख्याल है जनाब जी? अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज बताया है। हाँ तो कहाँ है मेरे? ये तो मैं तो बता दिया ना आपको यार। देखिएगा अशरफुल सवाने खोलिए, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 12 में मौजूद है। खाजा अजीजुल हसन अपने हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब के परदादा का वाकया नकल करते हुए लिखते हैं, परदादा साहब तो किराना और शामिली के दरमियान जहां पुख्ता सड़क है शहीद हुए। किसी बारात में तशरीफ ले जा रहे थे कि डाकुओं ने आकर बारात पर हमला कर दिया। ये मुकाबला में शहीद हो गए। शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ।
शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई लाकर दी और फरमाया अगर तुम किसी पर जाहिर ना करोगी तो रोजाना इसी तरह आया करेंगे। लेकिन उसके घर के लोगों को अंदेशा हुआ, घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाता देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबह करेंगे, इसलिए जाहिर कर दिया और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। ये वाकया खानदान में मशहूर है। तो देखिए अशरफ अली थानवी के दादा जब जिंदा होकर के मिठाई ला करके दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और उठ करके आ रहे हैं, जनाब आपने जिस फतवे से शिर्क करार दिया है मदद लेने को, तो यहाँ तो मदद भी कर रहे हैं, मिठाई भी ला करके दे रहे हैं, तो क्या कहें? मदद नहीं मांगी ना, तो बादल विशाल कोई मदद करे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरे अलावा नबी से वली से मदद मांगो। हेलो, एक बात बताइए हजरत। हेलो, मेरी बात सुनिए, आप गौर से सुनिए। आप कौन बोल रहे हो जी? मैं अनस बोल रहा हूँ, वो सलीम भाई बोल रहे थे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हजरत, मैं गिरा, मेरी बात गौर से सुना आप। हेलो। हाँ मैं गिरे ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। हेलो। हाँ बता, बोलिए, अब मैं सुन रहा हूँ जनाब। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था कि कबर मतलब किसी मुर्दे के पास में जाके कुम बिज़निल्लाह कहा, मुर्दा खड़ा हो गया अल्लाह के हुक्म, ठीक है ना? ठीक है ना? है ना? ये मौजिज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का, ठीक है। मिट्टी की चिड़िया बनाई, उसे कह दिया तो वो उड़ने लगी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है जी जी। और जी बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला बोलिए 12 साल पुरानी बारात डूबी हुई थी, वो निकली थी, करामत थी वो बड़े पीर साहब की। तो आप उससे क्या ले रहे हैं? वली अल्लाह की करामत होती है तो उससे आप मदद ले रहे हैं। हेलो। हाँ, तो ये आप क्या कहेंगे कि वली साहब ने मदद कर दी? मदद का वो करामत है ना, मदद के आप मुनकिर हो, और मदद जो कायल है उसको मुश्रिक करार दिया है आपके मुफ्ती ने। आप सुनिए जनाब, सवाने कासमी खोलिए, जिल्द अव्वल सफा नंबर 323। सुनिए पहले जी, आप एक सेकंड सुनिए, आप बोलिए, मेरे जवाब सुनिए। आपने शिर्क का फतवा लगाया है, तो मैं आपके हवाला घर का चेहरा आपको बता दे रहा हूँ। सवाने कासमी हिस्सा अव्वल सफा नंबर 332। घबराए नहीं, घबराए नहीं, आपकी बात सुन लिया मैं। हेलो। हाँ हेलो, सुन लिया मैं। अब सुनिए गौर से, इबारत सुन लीजिए, भागिएगा नहीं। तुम मदद क्यों? अरे इबारत को छोड़िए भाई, कुम बिइज़निल्लाह अल्लाह के हुक्म से किया नहीं, वो उनके मौजिज़ा है, ईसा के मौजिज़ा ने मुर्दे जिला दिए हैं जो भी है, लेकिन अल्लाह ने कहीं भी नहीं फरमाया कि वली से नबी से मदद मांगो। अल्लाह ने नहीं फरमाया है। लाहौल मैं कुरान की आयत बता सकता था, लेकिन आपके घर के मकरूह चेहरा दिखा रहा हूँ। आपने फतवा लगाया है शिर्क का, जनाब शिर्क का फतवा लगाया है, मदद मांगने को शिर्क कहा है। तो सुनिए गौर से, सवाने कासमी हिस्सा अव्वल। दो मुल्ला बोल रहे हैं जनाब, एक बात कीजिए, सुनिए गौर से। आपकी मदद मांगने शिर्क है तो सुन लीजिए, गौर से सुनिए, खामोश रहे। एक मिनट सुनिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया था कि अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा 40 दिन के लिए, जो बोल दिया था, तो अल्लाह पाक ने क्या हुआ? अल्लाह पाक नाराज हो गया था ना कि तुमने अपनी तरफ से कैसे कहा? अपनी तरफ से कैसे कहा? हाँ, तो अल्लाह पाक ने पकड़ कर ली थी ना, वो तो नबी थे जी। हेलो जी जी, हेलो मत की, मैं सुन रहा हूँ। इख्तियार नहीं है, नबी को इख्तियार नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ कह दें। जनाब अपनी तरफ से हम नहीं, जो भी मदद मिलते हैं ना, अल्लाह और रसूल, अल्लाह ही मदद करता है, लेकिन उनको वो जरिया बनता है, वो मदद करते हैं, उनको ताकत दी जाती है। हदीस पाक में है कि अल्लाह के वली जो होते हैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ, है ना? मानते हैं इस हदीस को? आप सुनिए एक मिनट हजरत, आपका अकीदा वो वाला है कि जैसे गैर मुस्लिमों का ये अकीदा है कि अल्लाह एक है बस, ठीक है, लेकिन अल्लाह एक है कि ये, हाँ,
हाँ, इससे तो किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आपने कहा मदद मांगना शिर्क है, कहा है जनाब। मैं ताज्जुब करता हूँ, कैसे शिर्क कह दिए जनाब? आपके घर के अकाबिरीन उसे मुश्रिक करार पाते हैं। हमारे घर के अकाबिरीन, सुनिए, गौर से सुनिए, सवाने कासमी खोलिए, हिस्सा अव्वल, हदीस कसीरा भी, हदीस का हवाला सुनिए। आपके घर का मकरूह चेहरा आपके फतवे से आपके अकाबिरीन काफिर हो रहे हैं। आपके अकाबिरीन मुश्रिक है, काफिर है कि नहीं? अरे आप जो है तोहमत सुनिए, सवाने कासमी हिस्सा अव्वल सफा नंबर 332 खोलिए। कासिम नानतवी साहब अपने वफात के बाद मुश्किल में फंसने, अब आपके अकाबिरीन को गतर में डालते हो। आपकी जमात जो है मुशरिक अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु एक आदमी आप लोग हेलो, एक आदमी बात किया कीजिए, डबल आदमी बात मत करो। सुनो, सवाने कासमी हिस्सा अव्वल सफा नंबर 332 है ना। कासिम नानतवी साहब ने बीच में बोले नहीं, मैं खामोशी के साथ सुना। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जनाब, मैं हदीस सुनाऊंगा आपको। मैं देखिए, आपके फतवे से ये मुश्रिक कैसे होते हैं। देखिए, फंसे इस देवबंदी तालिबे इल्म की इमदाद की। इस वाकया के तवजीह में मुनाजिर अहसन गिलानी देवबंदी इस देवबंदी अकीदा की वजाहत बयान करते हुए लिखते हैं, बस बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं और आप मुनकिर हो। बताइए, आपके सवाने कासमी में लिखी हुई हम मदद के कायल हैं, मुनकिर नहीं है, बुजुर्गों से मदद लेते हैं, हम मानते हैं, और आप मुश्रिक का फतवा लगा रहे हो। तो आपके अकाबिरीन आपके फतवे से काफिर हुए और मुश्रिक हुए। मुबारक हो जनाब। और हवाला दूं? हजरत वसील मदद लेना, वसीला को छोड़ दें, मदद ही का कह रहा हूँ। मदद के जो ले तो आपके मुफ्ती ने धरने से कह दिया मुश्रिक है। तो बताइए, ये बुजुर्गों से मदद लेने को आपके बुजुर्गाने दीन जो है मदद मांगना जायज है? आप बताइए जी क्या है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? वो तो कहे ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज है उसके साबित करते हैं, लेकिन अब वो कहा आपके मुफ्ती साहब के मुश्रिक हो जाता है, तो आपके फतवे से, आपके घर के फतवे से बताइए कितने मुश्रिक मैं दिखा रहा हूँ जी? आप मुश्रिक हैं, आप कुछ मत दिखाइए हमें, आप मुश्रिक हैं, तुम्हारा ही अकीदा है तो हाँ। और सुनिए, एक आदमी बात किया कीजिए, है ना। हेलो, एक आदमी बोलिए। अरे कौवे खा करके आए हो क्या? कौवा खा के आए हो क्या जनाब? खामोश रहें, एक आदमी बात करें, डबल आदमी बात करें, किसकी जवाब दो किसका नहीं। जबकि दो मुल्ला को शिकस्त फास हो रहे हैं और देवबंद को क्या अपने चेहरा देखिए, देखिए चुनांचे एक देवबंदी आलिम मुनाजिर आसम किलानी साहब, सवाने कासमी हिस्सा सोम, सवाने सोम, सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मैं कुरान की आयत तुम मुश्रिकों को क्या बताऊं जनाब। पहले तुम्हारे घर की हवाला सुनो, देवबंदी तो इससे थे। आसन गिलानी साहब उसको बता रहे हैं, वो क्या है ना, वैया का नाबुद वैया का नस्तईन। तो आपके फतवे लगाए आपके घर के पर के सवाने कासमी लिखने वाला अशरफ अली थानवी और मुहाजिर मक्की सब काफिर हो रहे हैं ना। कहीं भी नहीं, आप तोहमत लगा नहीं, मैं हवाला जा तो मैं स्कैन के साथ डालूंगा, देखिएगा। ऐसी सूरत में जैसे अहमद रजा खान ने, सुनिए, आप लोग ऐसे ही बकते रहिए, कौन मुल्ला आप लोगों को पढ़ा देता है ऐसा यार। मैं इसरार किया जाता है उसकी मौत के बाद। सुनिए गौर से, कौवे की तरह मत चिल्लाइए, सुनिए खामोश रहिए। उसके मौत के बाद हम उसको मुर्दों में शुमार करें। याद होगा कि एक दफा नहीं मुतअद्दिद मौके पर मुशाहिदा करने वालों ने बाद वफात देखा कि मौलाना नानतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उनसूरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए। बताइए, ये मदद के लिए तशरीफ ला रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद के झगड़ा सुलझा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सवाने कासमी हिस्सा सोम। अब लगाओ कासिम नानतवी पर फतवा, आपके फतवे से तो ये मुश्रिक करार होते हैं ना। तो ऐसे धर्म से तौबा करके मुसलमान बनो यार। तौबा करो, तुम्हारे फतवे से, ये तुम्हारे फतवे से तुम्हारे नानतवी भी नहीं बचा, अशरफ अली थानवी भी मुश्रिक बन रहा है। अस्तगफिरुल्लाह।
अरे यार तौबा करो, देवबंदी धर्म को लात मारो यार, ऐसे सजाद बयानी बता रहा हूँ मैं। कलमे में क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। चलिए कलमा पढ़िए, कलमा पढ़िए, कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ तर्जमा कीजिए, नहीं है कोई माबूद तर्जमा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आम ईमान मुजमल पढ़िए, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, मदद करने वाला अल्लाह के, ईमान मुजमल पढ़िए, ईमान मुजमल पढ़िए, आप ईमान मुजमल पढ़िए। मदद करने वाला शुरू में अल्लाह है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब ये आपके घर के शिरक हो गए। जी 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 हो गए, आपका काम हो गया। आपके घर के फतवे से कितने आदमी बातिल और मुशरिक हो गए ना। अब देवबंदी धर्म को लात मारे जैसे, वैसे ही आप अब हमेशा अहले सुन्नत व जमात में कायम दायम रहिए, है ना। देखिए मुनाजिर आसन गीलानी देवबंदी एक और जगह अपने इमामुल कबीर कासिम नानोतवी के मुतालिक फरमाते हैं, सुन लीजिए जनाब, कौवे खा करके बकबक मत कीजिए, तौबा कीजिएगा, फिर तौबा करके फिर उसी में धर्म में कायम हो जाए। लेकिन कल्बी और बातिनी तरीके पर कल्ब पर इस दर्जा औलाद पर शफकत से भरपूर रहता था कि जिंदगी ही की हद तक नहीं, बाद वफात भी औलाद पर आपकी वही निगाह शफकत कायम रहती थी। सवाल कासिमी अव्वल सफा नंबर 560। बताइए आपके फतवे से कासिम नानोतवी, आसन गिलानी लेकिन आप काफिर और मुश्रिक करार पा रहे हैं यार, तौबा करके भी फिर वही अकीदा में रह रहे वो है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटी यार, आपके मकरू चेहरा बता दिया ना। तुम तो हमें डांट, और बताओ देवबंदी मुल्ला कब्र से उठकर मदद करने आ गया, आखिर शिर्क क्यों नहीं। देवबंदी आलम जनाब आलिम साहब जो हैं आसन गिलानी अपने बड़ों को शिर्क से बचाने के लिए लिखते हैं, मजबूरन ये लिखते हैं, बुजुर्गाने दीन के अरबा से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है। हमारा भी अरबाए सालीन से मदद के मुतालिक वही अकीदा है जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। किसका अकीदा बता रहे हो हम लोगों का, हम देवबंदियों का अकीदा वही है। सुनिए वो सुनो हेलो सुनो हम लोगों का अकीदा वही है, कह रहा है जो अहले सुन्नत व जमात का है। हम लोग अहले सुन्नत व जमात है ना, देवबंदी का वही अकीदा बता रहे हैं। और ये सब कुरान हदीस से साबित है क्या करके सवाने काफी जिल्द अव्वल सफा नंबर 332 में लिखा है। बताइए, और कुरान हदीस का इनकार करने वाला कौन होता है? मुशरिक होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जब मान लिया है तो देवबंदी धर्म को लात मार रहे हो कि नहीं? हेलो, अरे तौबा करो यार, हेलो, अरे तौबा करो यार, तौबा कर लो, मुसलमान बनो यार। अस्तगफिरुल्लाह। अनस देवबंदी साहब, अनस मुफ्ती देवबंद, अरे यार तौबा करो, बुग़्ज़ का आईना उतारो और अंधे का कपड़ा का चश्मा मत पहनो, उतार के फेंको और कौवा को आराम जानो यार। कौवा खा के दो मुफ्ती काय कर रहे हो, कितना ठोकूं बताइए। अरे खुद के फतवे से तुम लोग जहन्नम जा रहे हो ना यार। अब सुनिए, मौलवी नानोतवी साहब खुदाई तसर्रुफ करता था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा गलीज धर्म उठा पटक के फेंको यार, पेशाब करो और ऐसा धर्म को लात मारो यार। सुनो, मदद मांगना गैरुल्लाह का शिर्क है ना। तुम्हारे कासिम नानोतवी मुशरिक हुआ, अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ, हाजी इमदादुल्लाह मुशरिक हुआ। बता रहा हूँ, सुनो और भी सुनो। नानोतवी तो पक्का मुशरिक किताबों में है। अब एक नया तमाशा और मुलाहिजा फरमाइए। कारी साहब इस रवायत पर देवबंदी मजहब धर्म के पेशवा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने अपना एक नया हाशिया चढ़ाया है, जिसमें बयान करदा वाकया की तौसीक करते हुए मौसूफ ने तहरीर किया है। ये वाकया रूह का तमस्सुल था और उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जज्दे मिसाली था मगर मुशाबे जज्दे उनसूरी की। दूसरी सूरत ये कि रूह ने खुद अनासिर में तसर्रुफ करके जज्दे उनसूरी तैयार कर लिया था। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको खुदा मानते हो यार नानोतवी को, इतना जूता मारता है इसको। अरबाए सलासा सफा नंबर 193
सफा नंबर 194, हिकायत नंबर 246। हेलो सुनाइए, सुनिए, सुनो, देख रहे हैं आप ये वाकया के साथ कितने मुश्रिकाना अकीदा बकौल देवबंदी लिपटे हुए हैं। पहला अकीदा तो मौलवी कासिम नानवी को हक में इल्म गैब का भी मान लिया, क्योंकि उन हजरात के तई अगर उन्हें इल्म गैब नहीं था तो आलम बरज़ख में उन्हें क्यों कर खबर नहीं हुई। ये तुम्हारी किताब में भरमार है मेरे पास यार, कितना हवाला दूं, हवाला सुनते जाओगे। वल्लाह तुम्हारे फतवे से तुम्हारे कोई अकाबिर नहीं बचे, तौबा भी करते हो, ऐसे धर्म से निकलो यार, मैं मशवरा दूंगा। हेलो, अरे मुशरिक को तौबा की तौफीक भी नहीं होती। तो तौबा करते हैं या नहीं यार? फिर तौबा करो, फिर से एक बार तौबा करो, तुम्हारे पेट की पूजा पूरी नहीं होगी, फिर तौबा करो यार। नहीं होगी या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे तुम लोग गलीज है यार, कैसा कहा कर तुम लोगों को दिलो दिमाग सब मुर्दे हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला, कैसा धर्म में है यार, कैसे मानोगे यार तुम लोग, बताओ तो, तुम ही लोग बताओ कैसे मानोगे। तुमको क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, तुम्हारे अकाबीन को जूता के नोक में मारते हो तुम लोग। अस्तगफिरुल्लाह, वैसे पढ़ा लिखा बता दिया आपने आपकी और जाहिल, कैसे तुम लोग जिहालत हो यार, तुम लोगों के अकाबरीन की किताब को जूता के नोक में मार रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, 98 के सुन्नत मत अदा करो। हेलो, कैसे गई 98 की सुन्नत अदा मत करो, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। यही हुक्म है, लेकिन अब सुन लो जनाब, अब खामोशी रहना, मुस्लिम शरीफ खोले, हवाला हदीस का दे रहा हूँ ताकि नाम मत लीजिएगा, मैं नहीं चाहता था कि हदीस सुनाऊं या सुनाऊं, है ना। खामोशी से सुनिएगा, मुस्लिम शरीफ, आपने झूठी तोहमत लगाई। हेलो, मुस्लिम शरीफ अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर, अबू दाऊद शरीफ की, आप खामोश रहो, हदीस सुन लो यार, तो हदीस सुनो, कौवे की जैसे काय मत करो यार, तो कैसे कौवा खा करके तुम लोग बकलो लोग गए। हदीस सुनो, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1320, मुस्नद अहमद शरीफ हदीस नंबर 16624, इब्ने हम्बान शरीफ हदीस नंबर 2594, इमाम शोबुल ईमान में अंदर हदीस नंबर 4344, इमाम तिबरानी मुअज्जमुल कबीर में हदीस नंबर 4540 में यह हदीस मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से मैं नकल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसको गौर से सुनना और अपने देवबंदी धर्म को नजदीक को ठोकर मार करके और ताइब होकर के मुसलमान बनना यार, है ना। इन सब का अकीदा कि नबी को कुछ अख्तियार नहीं था, उन्हें मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं इसमें, रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मांग क्या मांगता है, तो गोया माज़अल्लाह इनके अकीदे के मुताबिक नबी ने भी शिर्क कर दिया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। देवबंदी वहाबी के अकीदे पर फिर रबिया बिन काब असलमी ने मांगा जन्नत, क्या मांगा उससे, जन्नत मांगा, तो रबिया ने अल्लाह के बजाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगकर तुम्हारे फतवे के कौल के मुताबिक शिर्क कर दिया, अलियाज़ु बिल्लाह। तुम्हारे फतवे से तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बचते हैं। मैं हवाला दे दिया हदीस का, हालांकि तुम लोगों को हदीस नहीं बताने का मकसद था, वो हदीस जो बताता हूँ मैं कसीरा हदीस का हवाला देता हूँ। हेलो, अब सुनो, कान खोल के हदीस सुनना चाहते हो, अरे अल्लाह के बंदे ऐसे धर्म से तौबा करो यार, जो गैरुल्लाह से मदद को तुम काहे को शिर्क बताए हो, शर्म करो। तौबा करते हो या नहीं, फिर तौबा करो, अरे यार तौबा करो, हदीस को मानते हो या नहीं गद्दार, अबे मरदूद, हदीस को मानते हो। मुस्लिम शरीफ के हदीस में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के हदीस में मौजूद है, मुश्रिक हो, अपने अकाबिरीन को जूता मारा और हदीस सुनाए, तो तुमको हदीस इसलिए नहीं सुना रहा। देखो अनस कासमी देवबंदी मुफ्ती हदीस इसलिए नहीं सुना रहा था कि हदीस सुनाने के बाद नहीं मानने वालों का मैं जूते से स्वागत करता हूँ, समझे। ऐसे गद्दार कौम हो, इस्लाम के नाम पर बदनुमा दागदार हो तुम लोग, लाहौल हदीस का इनकार करने वाले कमीने देवबंदी, इसीलिए मैं नहीं सुना रहा था तुमको हदीस। तुम्हारे सुनो, अबे मरदूद, तुम हदीस को क्यों ठुकरा रहे हो, शर्मानती है। मैं हदीस का कसीरा लाता, लेकिन इस लायक नहीं हो तुम लोग
तुम्हारे अकाबिरीन का छुचुंदर किताबें जो लिखे हैं उसको सुनो। ये बारिश बरसाता है, औलाद देता है, बीमारी दूर करता है। अरे अशरफ अली थानवी जो पैदा हुआ ना, वैसे ही मरदूद जो पैदा हुआ, तो वो हकीम के वो मदद लेने के अम्मा हुजूर जो गई थे, अशरफ सवादे में लिखा है, पता नहीं उसका अब्बा तो हिजड़ा था, हो गया था ना, अस्तगफिरुल्लाह, हरामी को मुजद्दिद मान लिया है मरदूद लोग। सुनो तुम लोग, और वहाँ एक सलासा, मैं हदीस तुमको नहीं सुनाऊंगा इसलिए कि मुझे जलाल आता है। जो हदीस का इनकार करता है ना, उसको मैं कत्ल कर दूं जैसा लगता है, और कुरान की आयत इसलिए नहीं सुना दूं, तुम इनकार करोगे तो कत्ल कर देंगे जैसा लगता है। तुम्हारी किताब अरवाए सलासा सुनो, सफा नंबर 192, बानी देवबंद कासिम साहब के इस तरह के बाद अज़वफ़ात देवबंद तशरीफ लाने पर अशरफ अली थानवी साहब क्या लिखते हैं, ये वाकया रूह की तमस्सुल का था, और उन दोनों की सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जज्दे मिसाली के साथ मगर मुशाबे जज्दे उनसूरी के साथ, दूसरी सूरत ये कि रूह ने खुद अनासिर में तसर्रुफ करके जज्द उनसूरी तैयार कर दिया। लाहौर वाला को जिस्म, वो कासिम नानवी की रूह कैसे जिस्म बना लिया यार, क्या भगवान मानते हो तुम लोग? भगवान मानते हो? अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल कैसा भगवान मानते हो? अरे यार, ऐसे धर्म से तौबा करो। मुफ्ती अनस साहब, ऐसे धर्म से तौबा करो और लात मार के मुसलमान, फिर से एक बार कलमा पढ़ो, फिर से एक बार कलमा पढ़, तुझे पढ़ना पड़ेगा बेटा, फिर से एक बार कलमा पढ़। बिल्कुल मुशरिक वाला, जैसे उन्होंने 360 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना देवबंदी जिधर रुक करता है उधर गड्ढे में जाके गिर के मर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन तौबा करता है फिर भी वही अकीदा, वही सड़े हुए वाकिया सुना है ना, बाकी रहमतुल्लाह अलैहि का वाकिया, और सुनोगे, उनकी माँ ने उनका और सुनोगे तुम्हारे गिलाजत, मुसल्ले के नीचे से शक्कर सुनोगे और गिलाजत। इसलिए तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैहि नाम पड़ा उनका। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी औलिया किराम हैं हम बहुत ताज़ीम करते हैं। अशरफ अली थानवी भी अपने वाक़िया अपनी किताबों में तहरीर कर लिखा है। हसन गिलानी मुनाजिर ने तुम लोगों का तहरीर सवाने कासमी का हवाला दिया, और बाकी सवाने कासमी का हवाला दिया, और वाहिद सलासा का हवाला दिया, अशरफ सवाने का हवाला दिया। तुझे अफसोस हसरत है, अपने अकाबिरीन के जूते के नोक पे रखते हो और बात नहीं मानते हो, और तौबा भी करते हो, फिर मुश्रिक भी फतवा लगाते हो अपने अकाबिरीन पर। जाओ जहन्नम में। और तुम हदीस और कुरान मैं इसलिए नहीं सुनाता हूं तो ताकि तुम बेइज्जती करोगे, और तुम जब अपने अकाबिरीन को जूता के नोक में मार रहे हो। मुस्लिम शरीफ हदीस, अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनाया तो उसमें मजाक बना के रख दिया, सामने होता तो जूता मारता, तौबा करके कौवा खा करके जाओ और सवाब कमाओ, है ना, रख सवाब कमाते रहो, कौवा खा करके छछूनर खा और वो खा, सवाब कमा, आज कमाया कि नहीं सवाब कौवा खा करके? अच्छा मैं वो खा। हेलो, ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती देवबंद साहब, मुफ्ती देवबंद साहब, कौवा खा करके सवाब कमाए हो कि नहीं? आज लगता है कि तुम कौवा खा के ज्यादा खा रही है। तौबा की वो नहीं होगी ना जब तक अल्लाह ताला की बख्शिश नहीं करता। हेलो, सच बताइएगा, आज कौवे की बिरयानी कितना खाए हैं? सच बताइए, सवाब है ना? तू छछूनर की बिरयानी कितनी खाया? चिमगादड़ की बिरयानी कितनी खाया? कौवे की बिरयानी खा करके सवाब कमाया है कि नहीं? अबे सवाब कमाया है कि नहीं? बताता है कि नहीं? कौन आने सुनत हो जाओ तुम लोग? देवबंदी चमार से भी ज्यादा जलील है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे फतवे से सारे मुश्रिक हो गए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम लोगों को हिदायत दे। मैं यही दुआ करूंगा ताकि तुम जन्नत में जाओ यार। वल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम लोग मत मरो लेकिन मुसलमान होकर के मरो। क्या होकर मरना? क्या होके मरोगे? मुसलमान बन जाना भाई, मुसलमान बन। तुम लोग मुसलमान बनो यार, क्यों तौबा नहीं करते यार? मैं तुम लोगों को कैसे सुधारूंगा बताओ तो, तुम ही बताओ, कैसे बताएंगे? कैसे मानोगे तुम लोग जबकि अकाबिरीन की किताब को ठुकरा दिए, हदीस को ठुकरा दिए? हाँ, कैसे मुसलमान बनोगे बताओ तो? नहीं, कैसे मुसलमान बनोगे तुम लोग? मुसलमान से भी पूछेगा, वो भी क्या देगा कि हाँ नहीं जनाब, किसी से नहीं जनाब वसीला के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। आप ही बताइए कि आप लोग कैसे मुसलमान बनोगे बताओ तो?
हेलो भाई हमारा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। आपके अकाबिरीन के रविश पे आप लोग नहीं है। वल्ला मैं बताया तो आप ठुकराते हो, हदीस को बताया तो ठुकराते हो। मैं हदीस को जो ठुकराता है ना, बहुत गुस्सा लगता है मुझे। सही अकीदा होगा ना तो वो यही कहेगा हाँ वसीला लगाया जा सकता उनका। वसीला के तो कोई इनकार ही नहीं करता, आपके अकाबिरीन भी लिखे। लेकिन मदद के जो शिर्क लगाए ना, तो आपके फतवे से तो बहुत सारे आपके अकाबिरीन मुश्रिक हो जाते हैं, मानते भी हो और कहते इकरार भी करते हो, फिर तौबा भी करते हो। पता नहीं कैसे सुधारेंगे तुम लोगों को यार। अच्छा ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। रखो।